السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، اس سے پہلے ہم نے ماحولی نظام کا حسن انتظام یہ دیکھے تھے، یا انوائرمنٹل مینجمنٹ۔ اس کا پارٹ فرسٹ میں حیاتی اجزاء اور غیر حیاتی اجزاء دیکھے، کون کون سے حیاتی اجزاء ہوتے ہیں، کون کون سے غیر حیاتی اجزاء ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ماحولی نظام کس طرح بنتا ہے حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء کے ذریعے، اور ماحولی نظام کا پورا ہم نے چارٹ دیکھے تھے۔ ساتھ ہی دیکھے تھے ماحول اور ماحولی نظام میں کیا کیا تعلق ہوتا ہے۔ تو آج کا پارٹ سیکنڈ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز مجھے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، اور اپنے کمنٹ مجھے ضرور بھیجیے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ماحولی نظام کا حسن انتظام، اس میں ماحول کا تحفظ یا انوائرمنٹل کنزرویشن۔ ماحولی آلودگی کی وجوہات کون کون سی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ انسانی آبادی کا دھماکہ، تیزی سے بڑھنے والی صنعتیں، قدرتی وسائل کا بیجا استعمال، جنگلات کی کٹائی، غیر منظم شہر کاری وغیرہ وجوہات ماحول کی آلودگی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تو یہاں یہ آبادی کا دھماکہ ہے، صنعتی آلودگی ہے، اور جو اشیاء ہے قدرت نے ہم کو نوازی ہے ان کا ہم بیجا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہاں سائیکل کا استعمال نہ کرتے ہوئے گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، اس سے آلودگی ہوتی ہے۔ پھر ری سائیکل ہونے والی چیزیں استعمال نہیں کرتے، پانی کو سیو نہیں کرتے، اور غیر ضروری اشیاء خریدتے رہتے ہیں، جس سے ماحول آلودہ ہوتا ہے۔ جنگلات کی کٹائی۔ نیکسٹ ہے آلودگی کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ تو آلودگی ایک وسیع تصور ہے۔ ہوا، پانی، آواز، تابکاری، زمین، حرارتی روشنی، پلاسٹک کی آلودگی جیسے مختلف اقسام کی آلودگیاں پائی جاتی ہیں۔ تو پہلی آلودگی دیکھ رہے ہیں ہم، ہوا کی آلودگی ہے۔ دوسری آلودگی ہے پانی کی۔ تیسری آواز کی بھی آلودگی ہوتی ہے، بہت زیادہ آواز یا شور، اس کو ہم آواز کی آلودگی کہتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے زمین کی آلودگی۔ تابکار آلودگی کیا ہے؟ تابکار آلودگی قدرتی اور انسان کی پیدا کردہ ان دو طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ قدرتی طور پر بھی ہوتی ہے، جیسے آتش فشاں پھٹتا ہے تو بہت زیادہ دھواں پیدا ہوتا ہے، یہ قدرتی آلودگی ہو گئی۔ اور انسان کی پیدا کردہ تابکار آلودگی، جوہری ری ایکٹر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ریڈیو ایکٹیو جو شعاعیں ہیں یہ خارج ہوتی ہے، تو یہ انسان کی پیدا کردہ آلودگی ہے۔ تابکاری کے نتیجے میں خارج ہونے والی بالائے بنفشی شعاعیں، زیر سرخ شعاعوں کا شمار قدرتی تابکاری میں ہوتا ہے۔ بالائے بنفشی شعاعیں، اوزون لیئر پھٹ گئی ہے صنعتی گیسوں کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے جلدی کینسر وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ بالائے بنفشی شعاعیں، الٹرا وائلیٹ ریز۔ اور دوسری تابکار شعاعیں بھی خارج ہوتے رہتی ہے، جبکہ ایکس رے نامعلوم شعاعیں، ایٹمی بھٹیوں سے نکلنے والی تابکار شعاعیں، ایٹمی بھٹیاں کا استعمال ہوتے ہیں بجلی بنانے کے جو پلانٹ ہے، ریڈیو ایکٹیو پلانٹ، وہاں سے خارج ہوتی ہیں شعاعیں، انسان کی پیدا کردہ تابکاری میں شمار ہوتی ہے۔ دنیا میں آج تک چرنوبل، ون اسکیل اور 3 مائل آئلینڈ جیسے بڑے حادثات ہو چکے ہیں۔ چرنوبل یہ فیمس حادثہ ہے، یہاں تابکار شعاعوں کے ذریعے یا ریڈیو ایکٹیو ریز کے ذریعے برقی رو بنائی جاتی ہے۔ ان حادثات کی وجہ سے ہزاروں لوگ لمبے عرصے تک متاثر ہوئے ہیں۔ تابکار آلودگی کے چند اثرات جو ہیں ذیل کے مطابق دیے ہوئے ہیں۔
जैसे पहला है एक्सरे की ऊंची तापकारी की वजह से कैंसर पैदा होने वाला अल्सर हो जाता है। तापकार शुआएं नहायत ही खतरनाक होती हैं, तो उन्हें उनकी वजह से कैंसर पैदा करने वाला अल्सर हो जाता है। दूसरा है जिस्म के खलियों को नुकसान पहुंचता है। जिस्म के तमाम खलियात जो रहते हैं उनमें तोड़फोड़ होती है, नुकसान होता है। तीसरा जीन में तब्दीली होती है। एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो सकते हैं तापकारी की वजह से, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में आज तक वहाँ जो बम धमाके हुए उनके असरात आज भी बाकी हैं। नंबर 4, बसारत पर नुकसानदाह असरात मुरतब होते हैं। बसारत मतलब नज़र पर इफ़ेक्ट हो सकता है या कमज़ोरी वगैरह आती है नज़र की, तो ये है तापकार प्लांट है। नेक्स्ट है माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की क्यों ज़रूरत है। आज माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत क्यों पेश आती है वो देखते हैं। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से कवानीन के बारे में आवाम को मालूमात नहीं होती है। जो आजकल पढ़ी लिखी आवाम है वो थोड़ा बहुत जानती है, लेकिन कुछ आवाम जो है पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको जानकार होना निहायत ही ज़रूरी है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में लोगों को बड़े पैमाने पर हिस्सा लेना ज़रूरी है। माहौल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की मौसर अवामी तहरीक शुरू होगी, तभी माहौल के मसाइल हल हो सकते हैं। हम जब तहरीक चलाएंगे तो ही माहौल के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। इसके लिए छोटी उम्र से ही तलबा में माहौल के बारे में मालूमात से माहौल से मोहब्बत, मज़बत नुक्ते नज़र जैसे इक़दार पैदा करना चाहिए। छोटे बच्चों से ही शुरू करने चाहिए ताकि वो बड़े होकर माहौल का ख्याल रख सकें। तभी आने वाली नस्ल माहौल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ करने वाली होगी। इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए तालीम के ज़रिए अवामी बेदारी पैदा करना अहमियत का हामिल है। आज दुनिया के तमाम तरक्की पजीर और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक ने माहौल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी कबूल की है, क्योंकि आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसको कम किस तरह किया जाए ये हर एक की ज़िम्मेदारी है। वो इस नज़रिए से इक़दामात भी कर रहे हैं। इन ममालिक ने माहौल की हिफाजत के लिए पॉलिसी का तयन किया है। इसके लिए ज़रूरी कवानीन भी बनाए गए हैं। तो कवानीन क्या है वो देखेंगे बाद में। नेक्स्ट है माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी समाजी ज़िम्मेदारी भी है। हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह कर सकते हैं। माहौल और इंसान का ताल्लुक़ इंसान के वजूद के साथ ही से है। ज़मीन पर इंसान के कदम माहौल की पैदाइश के बहुत तवील अरसे के बाद पड़े। मतलब पहले माहौल था, फिर इंसान आया। इंसान ने ज़मीन पर रहते हुए अपने फ़हम व अदराक, ज़हानत, दिमागी सलाहियत, क़ुव्वत तख़य्युल, सोचने की क़ुव्वत की ख़ुसूसियत की बुनियाद पर दिगर जानदारों में अपना एक आला मकाम बनाया। तमाम मखलूक़ात में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, उसकी ज़हानत की वजह से ही और उसकी सोच की वजह से ही। अपनी खूबियों की बिना पर इसने फितरत पर दस्तरस हासिल की है। कुदरत ने इंसान को जो मुख्तलिफ़ अक़साम के वसाइल दिए हैं, इन वसाइल का इंसान ने भरपूर इस्तेमाल किया है। खुशहाल आरामदा ज़िंदगी के लिए कुदरत से जितना हासिल कर सकता था उतना हासिल करता रहा और आज उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए माहौल में गैर तवाज़ुनी कैफियत पैदा होती है। खुद की पेश रफ़त और तरक्की के अमल में कुदरती माहौल के नुकसान की इब्तिदा हुई। यहीं से माहौल के मसाइल बढ़ते गए। इससे ये बात समझ में आ रही है कि आज के माहौल के तवाज़ुन में इंसान का किरदार अहमियत का हामिल है। माहौल के तवाज़ुन को बिगाड़ने का काम अगर इंसान ने किया है तो इसका तहफ़्फ़ुज़ भी वही कर सकता है। कई मर्तबा हमारा अमल माहौल के लिए नुकसानदा है। ये बात आम लोगों को मालूम नहीं होती और अनजाने में
कुछ सरगर्मियाँ होती रहती हैं। तो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से क़वानीन बनाए गए, मतलब आवाम को भी मालूम होना चाहिए कि माहौल को आलूदा करने के हम ज़िम्मेदार हैं। इस वजह से जो सरकार है उसने क़वानीन बनाए। तो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का कानून सन 1980 में बना। ये क्यों बना? इस कानून के ज़रिए जंगलात की हिफाजत के लिए महफूज मकामात किसी भी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की गई है। जंगलात की हिफाजत के लिए मसलन कानकनी के लिए मरकज़ी हुकूमत की इजाज़त लाजमी है। कानकनी मतलब मादनियात वगैरह निकालने के लिए कानकनी की जाती है, ज़मीन खोदी जाती है। इस कानून की पासदारी न करने पर मुजरिम को 15 दिन की कैद की सज़ा देने की गुंजाइश मौजूद है। उसको अगर वो नहीं सरकार को इन्फॉर्म नहीं करता है या गैर ज़रूर कानकनी करता है तो उसको सज़ा हो सकती है, 15 दिन की कैद हो सकती है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का कानून सन 1986 में आया और ये क्यों आया? आलूदगी पर काबू पाना, माहौल को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स या अदारे पर कार्रवाई करना। अगर कोई शख्स या अदारा माहौल को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर यह कानून लादा जाता है। इस कानून के तहत किसी भी सनत, कारखाने या फ़र्द को मुकर्ररा शरह से ज़्यादा आलूदगी माहौल में खारिज करने का इख्तियार नहीं है। जैसे बाइक का साइलेंसर फट गया, धुआं वगैरह निकल रहा है तो उस पर फ़ाइन लगाया जाता है या और दूसरी कुछ सज़ाएं दे सकते हैं। कारखाने को भी, जहाँ कारखाने होते हैं तो दिन भर में उन्होंने कितना कारखाने का पानी या वो शय बनानी चाहिए जिससे आलूदगी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें खारिज होती हैं। उस कारखाने से खारिज होने वाला पानी जो है साफ़ ज़राए को आलूदा करता है, तो एक लिमिट रहता है। इस कानून के उसूल और दफ़ात की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़र्द को 5 साल तक कैद बामुशक्क़त या 1 लाख रुपये तक के जुर्माने की गुंजाइश है। उसको या तो कैद किया जाता है या तो 1 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर भरना है। माहौल के ताल्लुक़ से कानून पर अमल आवरी के लिए 2010 में कौमी सब्ज़ अदलिया का क़याम अमल में आया। वो जो अदालत है उसका नाम क्या है? कौमी सब्ज़ अदलिया। नेक्स्ट है जंगलाती ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का कानून सन 1972 के मुताबिक। जंगलाती ज़िंदगी मतलब वहाँ के नबातात है, हैवानात है, ये जंगलाती ज़िंदगी है। तो दफ़ा 49 के तहत कामयाब होते हैवानात के कारोबार पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। जैसे सांप है कुछ किस्म के, कुछ लोग तस्करी करते उसकी, बेचते हैं पैसों के लिए, उस पर पाबंदी। हिरन का शिकार जो सलमान खान पर केस हो गई तो उस पर पाबंदी, क्योंकि हिरन भी, इनकी जो नस्लें हैं वो भी ख़त्म होने के करीब है। शेर है उसका शिकार। तो ऐसे जानवर जो कम दस्तयाब होते हैं तो उनको मारना या उनका शिकार करना क्या है? गुनाह में दाखिल किया है। दफ़ा 49B के तहत जंगली जानवरों के चमड़े या आज़ा से बनाई जाने वाली अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। तो जंगली जानवरों के चमड़े उन्हें अट्रैक्टिव, साफ़ वगैरह करके वो अट्रैक्टिव रहते हैं। जैसे ज़ेब्रा का चमड़ा है या शेर का है या हाथी दांत है। हाथी दांत का इस्तेमाल बटन, हार वगैरह या खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें किया जाता है और ये महंगे भी रहते हैं। तो ये भी कामयाब जानवर है, इसलिए उस पर भी दफ़ा लगाई। दफ़ा 49B। दफ़ा 49C के तहत अगर किसी व्यापारी के पास नायाब जंगलाती जानवरों की अशिया का ज़ख़ीरा हो तो इसकी फ़ौरन मालूमात देना लाजमी करार दिया। यहाँ सिर्फ जानवरों का लिखा है, नबातात में भी, जैसे सैंडलवुड है, संदल की लकड़ी, अगर किसी के पास है तो उसका भी हम मालूमात दे सकते सरकार को। या
जंगलाती जानवर की अशिया मतलब जैसे हाथी दांत वगैरह या चमड़े वगैरह अगर किसी के पास, या सांप के जहर के लिए सांप को पकड़ा जाता है, उससे एंटीवेनम या जहर शिकन दवा बनाई जाती है। तो यहाँ भी हम सरकार को मदद कर सकते हैं शख्स का नाम बताकर। ये मैं अलामत आपके सामने बयान करती हूँ। रिसाइकल, रिसाइकल मतलब ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है जो फिर से इस्तेमाल हो और जिससे आलूदगी ना हो। तो ऐसी चीज़ कौन सी है? प्लास्टिक। प्लास्टिक का जग वगैरह टूटने के बाद हम क्या करते हैं, भंगार वाले को देते हैं, वो फिर से कारखाने में लेकर जाकर उसको फिर से कोई शय बनाए, रिसाइकल है ये। या कागज़ का कप इस्तेमाल ना करते हुए कांच का कप इस्तेमाल करो, फिर से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। या मेटल की अशिया है। फिर रिड्यूस, कोई चीज़ जो आलूदगी पैदा कर सकती है तो सोच कर इस्तेमाल करना चाहिए कि इसको इस्तेमाल करने से हम आलूदगी फैला सकते हैं। जैसे थर्माकोल की प्लेट है, थर्माकोल के ग्लास, प्लास्टिक के यूज़ एंड थ्रो वाले ग्लास, इनका इस्तेमाल ना करते हुए घर में मौजूद वॉशेबल जो प्लेट वगैरह हैं, फाइबर की है या स्टील का ग्लास है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम घूमने जाते हैं उस वक्त भी हम घर की चीज़ें लेकर जाना चाहिए। यूज़ एंड थ्रो चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। फिर यहाँ पेन भी है यूज़ एंड थ्रो वाली 2 रुपये की, तो ये भी आलूदगी पैदा कर सकती है। तो उसके बजाय हम 5 रुपये वाली पेन ले सकते हैं और सिर्फ छोटी सी रिफ़िल ही चेंज करनी पड़ेगी, तो इससे भी आलूदगी कम हो सकती है। रीयूज़, फिर से इस्तेमाल करना, वही मैं बताया कि फाइबर की प्लेट या स्टील का ग्लास, कांच का ग्लास, इनका इस्तेमाल करो, रीयूज़ होता है इसका, धोकर हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। या रद्दी पेपर, रद्दी पेपर को फिर से पैकेट वगैरह बनाने के लिए, उन चीज़ों को लेकर जाने के लिए प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो पेपर की थैलियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इस तरह मैंने इस अलामत को बयान की और इसका नाम लिखी। आगे आपको सवाल देती हूँ मैं, इन अलामतों के नाम लिखिए और वजाहत कीजिए। पहली अलामत तो मैं बयान कर चुकी, दूसरी कौन सी अलामत है वो लिखना है, उसकी वजाहत करना है, और दूसरी अलामत कौन सी है उसका नाम लिखना है और वजाहत करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।